So hello students, how are you all? As you all know that factorization of class 9 from ML Agarwal book is going on. It is time for exercise 4.3. If you don't have already watched that previous videos, that 4.1 and 2, then what are you doing over here? Just go and watch them first, then come to this video. Alright, so further any delay, let's start 4.2. So first of all, what we need over here, that is 4.2 is totally based upon the formulas, the identities. What identities are they? That is mostly they are using a square. Let me write it over here. Mostly they are using a square. The picture is coming or not? Let me check. Yes, it is coming. All right. So in this case, as I told you, mostly the a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. This identity we are going to use a lot in this case. Alright, so if you don't know this identity, just figure out that algebraic part that you need to multiply a plus b with a minus b, and whenever you will multiply, you will get a square minus ab plus ab minus b square, and as you can see, after multiplying these two we can easily cancel this ab and ab, so finally this part is remaining. So that is how the formula is coming over here. So that is not our main issue. Our main issue is that we need to do this kind of factorization work. Okay, so very first one, that is 1 part 2. What is given? That is 9x square minus 1. This one is given to us. Now what we need to do? Obviously, in this case, we can see that 9, that is the perfect square of 3. So instead of that 9x square, we can write 3x whole square. And 1 square is itself 1, right? So we can write 1 square instead of that. Very simple. So as you can see, now it is in the format of a square minus b square. As I told you, whenever you will use this kind of identities, you need to write that what should be the identity. That is the good habit. You have to show that the identity that you are using in the site. Okay, so if we evaluate this one in this identity, then we will have 3x plus 1, another one will be 3x minus 1. That's it. So we got the total idea right now. This should be our answer, and we can see that it's already factorized in two equal parts. So obviously we are having this as our answer. That's it. Now coming to another one. Okay, so coming to some little bit upward, मतलब थोड़ा level up करते हैं चलो. So first of all, what we are going to write, that is 3 part 1. तो इसमें क्या मिलेगा देखो, x minus y whole square minus 9. अच्छा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है. तुम लोग पहले सोचोगे सर x माइनस वाई होल स्क्वायर को इवेल्युएट करते थे. नो, just wait a bit. We need a square minus b square format. That what we decided, right? So in this case, already a square is given. That is x minus y the whole square. It is the a square. And b square, you can see that the square of 3 is 9. So you can write 3 square. And this is how it's already done, because we can write x minus y plus 3, that is a plus b, and x minus y minus 3, that is a minus b. Simple as that. We are just evaluating by a square minus b square equal to a plus b, a minus b. तो पहले देखो क्या करना है, ये वाला ध्यान से देख लो एक बार. तुम्हें x माइनस वाई होल स्क्वायर को इवेल्युएट नहीं करना है. ऑल वी नीड दैट द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो मैंने वही किया जहां पर ए स्क्वायर ऑलरेडी था, बी स्क्वायर को 3 स्क्वायर में लाकर वहां पर इवेल्युएट कर दिया. बहुत सिंपल है सम, बहुत आसानी से 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है. ऑलराइट, सो मूविंग टू अनदर वन, दैट इज, अभी और भी डिफिकल्ट चलते हैं. चलो, ये तो हो गया सिंपल वाला.
अच्छा, एक मैं देख रहा हूं यहाँ पर 6 पार्ट 2 है। इन 6 पार्ट 2 वी कैन सी दैट पाई ए स्क्वायर, फिर से वो पाई वाला, बाप रे बाप, ये पाई वाला क्यों देते हैं इतना, क्या पता। चलो, दिया है, हम लोग काम करेंगे। ऑलराइट, सो इन दिस केस व्हाट वी नीड टू डू, दैट इज पाई ए टू द पावर 5। बाप रे बाप, स्क्वायर नहीं हो रहा था, क्यूब नहीं हो रहा था, अभी ए टू द पावर 5 दे रहा है। ओके, उसके बाद माइनस पाई क्यूब, ठीक है चलो, फिर ए बी स्क्वायर। ऑल राइट, चलो ये वाला है। तो हम लोग क्या देखेंगे पहले, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम अवर प्रीवियस क्लासेस ऑफ फैक्टराइजेशन। जो कॉमन जा रहा है टेक इट आउट फर्स्ट। कैसे देखोगे, पहले पाई को देखना होगा। पाई यहां पर मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, ओनली एक पाई है फर्स्ट में, सो एक पाई को बाहर निकाल लो। फिर ए को कॉमन लेना होगा। इन दिस कॉमन पार्ट ऑफ ए व्हाट वी विल गेट, दैट इज, देखो मिनिमम पॉसिबिलिटी ओनली ए है यहां पर, हाँ, सो ए को कॉमन ले लो, और बी तो एक में है एक में नहीं है, तो बी को कॉमन नहीं ले सकते। सो एक पाई को कॉमन लिए हो तो यहां पर पहले में पाई नहीं बचेगा, और ए को कॉमन लिए हो तो यहां पर एक कम हो जाएगा, सो दैट विल बी ए टू द पावर 4 ओनली, एंड दैट इज माइनस पाई, एक निकाले हो यहां पर 3 था, सो इट विल बी पाई स्क्वायर, ए तो निकल चुका है, एंड बी स्क्वायर एज इट इज। तो देखो ऑलरेडी मेरा सम यहां पर कंप्लीट हो चुका है। दिस इज अ फैक्टराइज्ड पार्ट, बट स्टिल वी कैन फैक्टराइज इट मोर। तुम बोलोगे कैसे, मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूं, यहां पर एक ही आइडेंटिटी काम होता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहां पर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ दिख रहा है, दैट इज ए टू द पावर 4 क्या बन गया, हम तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल स्क्वायर में। और देखो पाई स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज पाई बी होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको। सिंपल किए, ए टू द पावर 4 था, इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर में बदल दिए, और पाई भी तो स्क्वायर में था ऑलरेडी, उसको कॉम्पैक्ट करके ब्रैकेट में लाकर होल स्क्वायर कर दिए, सिंपल। अच्छा, आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, अभी देखो यहां पर ऑलरेडी दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट, स्क्वायर देना बाकी है। मैंने क्या किया, इस सॉरी डायरेक्ट कर देता हूं चलो। तो यहां पर देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर था माइनस पाई बी का स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी लिख रहा हूं, तो ए मतलब क्या था, ए स्क्वायर इटसेल्फ, तो ए की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, एंड पाई बी इज देयर, सिमिलरली ए प्लस बी हो गया। अभी ए माइनस बी में भी वैसे ही लिखना है। अच्छा, अगर ये पार्ट किसी को डाउट हो रहा है, सर ए स्क्वायर ए बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, तो देखो कैसे करोगे तुम लोग। हम लोग ए टू द पावर 4 को लेकर ही परेशानी में आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला समझ लो, ए स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अभी ए स्क्वायर को तुम पकड़ लो जेड, तो क्या बन जाएगा, जेड का स्क्वायर। तो तुम अगर यहां पर लिखोगे जेड स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, तो देखो बहुत इजी हो गया। एक्चुअली दिक्कत किस में हो रहा था, ए स्क्वायर में भी, वो भी दिक्कत मतलब बहुत सारों का नहीं भी हो सकता है, जिसका होगा उसके लिए बता रहा हूं। यू कैन टेक ए स्क्वायर इक्वल टू जेड, उससे देखना सम बहुत इजी हो जाएगा। सो दैट इज आवर फाइनल फैक्टराइज्ड पोर्शन। चलो इसको डिलीट कर रहा हूं, यू कैन पॉज इट एंड कॉपी इट। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस कमिंग टू 9.1। अभी इस 9.1 में देखो कुछ दूर दूर तक कुछ स्क्वायर फेयर नहीं दिखेगा तुम्हें। ए माइनस 2 है, फिर माइनस बी देकर बी माइनस 2 है, तो इसमें अभी क्या करें, ये तो ऑलरेडी कोई स्क्वायर फेयर कुछ नहीं है। सो माई इंटेंशन विल बी टू मल्टीप्लाई इट फर्स्ट। चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। फर्स्ट वन ए स्क्वायर बनेगा, सेकेंड वन क्या बनेगा 2a, माइनस बी से बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस बी स्क्वायर बन गया, और माइनस बी से माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो इट विल बी प्लस 2b। तो अभी देखो जाकर कुछ फायदा हुआ है, कम से कम मुझे तो स्क्वायर वाला फॉर्मेट मिला तो है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा था वैसा रहने दो, और 2a एंड 2b को अलग से यहां पर
टू माइनस को कॉमन लेकर लिख सकते हो, डायरेक्ट काम हो जाएगा। जिसको समझ नहीं आया बोल रहा हूं क्या -2a था +2b था, उससे -2 कॉमन ले लो तो देखना पहले में a बचेगा, सेकेंड में -b बचेगा। दैट्स इट, सिखाया था ये वाला 4.2 में। अच्छा, now see that this first one having the identity already, so what we have to do, इसको तोड़ दो एकदम। सो तोड़ देकर मतलब a प्लस बी आया एंड a माइनस बी आया। और सेकेंड वाला में देखो ऑलरेडी a माइनस बी इज द कॉमन फैक्टर, सो व्हाट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू, पहले से a माइनस बी, सेकेंड से भी a माइनस बी। चलो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या बचेगा, फर्स्ट में बचेगा a प्लस बी एंड सेकेंड में बचेगा -2। दैट्स इट, हो गया मेरा काम। सो इट इज द फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्मेट। ऑलराइट, तो देखना पहले जब तुम्हें कोई स्क्वायर बी स्क्वायर सॉल्व मतलब उस फॉर्मेट में अगर नहीं दिया रहा, देन यू हैव टू जस्ट रीअरेंज इट अ लिटिल बिट। मल्टीप्लाई जा रहा है तो मल्टीप्लाई करो, कुछ अलग से रीअरेंज हो रहा है तो वैसे करो, तो देखना एक फॉर्मेट आ जाएगा जिससे तुम काम कर सकते हो फर्दर। सो दैट इज द आइडिया, कॉपी कर लो जल्दी से। ओके, सो दिस वन इज कंप्लीटेड। चलो इसको पूरा डिलीट कर लेते हैं एक बार। बाप रे बाप, अभी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, मेरा भी यहाँ पर टेक्निक है डिलीट करने का। हो गया, चलो। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस पार्ट, एज वी कैन सी 12 पार्ट 2। तो 12 पार्ट 2 में क्या देखोगे तुम लोग, चलो करते हैं 12 पार्ट 2। अच्छा यहाँ पर, हाँ 12 पार्ट 2 में देखो फर्स्ट वन दैट इज एक्स क्यूब है, सेकेंड वन 25x है। अभी तुम लोग बोलोगे सर हम लोग तो अभी a स्क्वायर बी स्क्वायर लेकर काम कर रहे थे, देन व्हाट वी विल डू विद दिस क्यूब फॉर्मेट। तो देखो क्यूब सिर्फ जस्ट एक तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए है। क्यूब का मतलब कोई यहाँ पर फायदा ही नहीं है। इफ यू सी वन थिंग, यू कैन एक्चुअली टेक आउट द x एज कॉमन फैक्टर, बिकॉज देखो दोनों में ही x है, तो पहले से x निकालोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एंड इन द सेकेंड वन इट विल बी 25 ओनली। तो अभी देखो मेरा काम ऑलरेडी आधा हो चुका है। सो रिमेनिंग दैट x इन द अदर साइड वी हैव एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर। वी नो दैट 25 इज नथिंग बट द 5 स्क्वायर, तो इससे 5 स्क्वायर आ रहा है। अभी देखो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर को तुम लिख सकते हो x प्लस 5, एंड सेकेंड वाला में भी x माइनस 5, सिंपल एज दैट। हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। ऑलराइट, तो ये वाला कंप्लीट हुआ। देखा, पहले क्यूब देखकर घबराओ मत। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट इफ एनी कॉमन फैक्टर इज कमिंग और नॉट। अगर आ रहा है तो बस बन गया तुम्हारा सम। ओके, चलो 14 पार्ट 1 करते हैं। In 14 part 1 we can see that the cube format is also there in a something different manner. Then what we can do, चलो लिख लेते हैं पहले 14 part 1. So in this case a plus b whole cube minus a minus b है। तो मेरा पहला काम होगा, यहां पर अगर कोई भी चीज कॉमन जाए तो उसको पहले कॉमन करके निकालो। तो क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब जैसा है वैसा रहने दो। फ्रॉम द सेकेंड वन यू कैन सी दैट -1 इज कॉमन, मतलब माइनस साइन कॉमन ले सकते हो। सो इट विल रिमेन एज a प्लस बी विद इन ब्रैकेट। बस काम खत्म। a प्लस बी मेरा कॉमन फैक्टर है दोनों में से, तो a प्लस बी को निकालोगे तो फर्स्ट वाला में बचेगा ये 2a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड सेकेंड वाला में बचेगा -1। तो देखो यहां पर भी तुम्हारा आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट। इसमें अगर किसी को दिक्कत होता है तो पहले तुम एक काम करो, ये वाला स्टेप करने के बाद a प्लस बी इक्वल टू जेड पकड़ लो, तो देखना बहुत इजी हो जाएगा सम। तो मैं यहाँ पर वो जेड वेड का काम नहीं कर रहा हूँ। स्टिल इफ यू हैविंग एनी कंफ्यूजन यू कैन फॉलो दैट जेड पैटर्न, मतलब जेड लेकर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी बाहर रहने दो, इसको अंदर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट। तो आंसर में आएगा a प्लस बी प्लस 1 मतलब a प्लस बी का फॉर्मेट,
एंड ए प्लस बी माइनस वन। बस काम खत्म, ये तीनों आंसर में बन गया मेरा। दैट्स इट। ओके, सो फाइनली वी गॉट द आइडिया अबाउट दिस काइंड ऑफ केस। चलो, सो ये वाला आइडिया तो लगभग मेरा हो चुका है, जिसमें देख रहा हूं ज्यादातर का आधा क्या 90%, चलो ना 90% में फाइनल करते हैं। तो 90% सम मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जा रहा है। बट एक बार नंबर 16 देख लो। इन दिस नंबर 16 इट इज गिवन इन सम अदर फॉर्मेट। तो क्या फॉर्मेट है पहले देख लेते हैं, चलो। In number 16, it is given as x square. I'm doing number 16 part 1, okay? X square plus 1 by x square minus 11. तो इसमें देखो a square minus b square का तो दूर दूर तक कोई फॉर्मेट ही नहीं है। तो हम लोग क्या करें? So, इसको देखो इवैल्यूएट करने का एक ट्रिक है। ट्रिक मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स ला दे तो ये वाला क्या बन जाएगा? x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, राइट? तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, आइदर हम लोग प्लस लाएंगे और माइनस लाएंगे। तो देखो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि यहां पर 2 प्लस मतलब 2ab प्लस करना है या फिर माइनस 2ab लाना है? तो देखो यहां पर पहले फिर से बता रहा हूं मैं। इन दिस केस ऑलरेडी व्हाट वी जस्ट सॉ, यहां पर देखो, एक मिनट इसको इरेज कर दो। हो गया, चलो। तो मैं क्या बता रहा था, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर था। तो हम अगर यहां पर प्लस, ओफो बहुत छोटा हो गया पेन, चलो और भी, हाँ अभी ठीक है। तो यहां पर अगर मैं 2x इंटू 1 बाई एक्स इससे प्लस करूं तो ये तो हवा से नहीं आया, ऐसे यहां पर इसको बिठाया तो इसके साथ और एक माइनस 2x 1 बाई एक्स भी तो लाना पड़ेगा, तभी तो एडजस्ट हो रहा है ना। और अलग से तो माइनस 11 वहां पर था। सो इफ यू फॉलो दिस वन यू कैन सी दैट वी जस्ट एक्चुअली डिडंट चेंज एनीथिंग इन द इक्वेशन। तुम इसको अगर दोनों को काट देते हो तो इक्वेशन जैसा था वैसा ही रहेगा। सो दैट इज वाई वी ब्रिंगिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टर्म टुगेदर, जैसे कि वो कट जाए, दैट मीन्स इक्वेशन में कोई चेंजेस ना आए। ओके, तो फर्स्ट वाला मुझे आइडिया में क्लियर हो गया। सेकेंड वाला अभी देखो, ये फॉर्मेट है x 1 बाई एक्स, इससे क्या होगा, इन दोनों को अगर एक साथ लिखोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। बट तुम बोलोगे सर यहां पर आप प्लस 2x 1 बाई एक्स को लेकर किए, अब अगर माइनस को लेकर करते तो क्या होता? वो भी तो हो सकता था ना। हाँ, यही यहां पर मेन इंटेंशन है। तो मैं एक बार प्लस को करके दिखा रहा हूं कि दिक्कत क्या होगा, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। पहले ये देखो, यहां तक सबका समझ में आया, इसका प्लस टर्म, ये वाला माइनस टर्म, चलो हो गया। तो अभी ये वाला मैं लिख रहा हूं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया। सेकेंड वाला देखो, x तो कट रहा है एंड माइनस 2 माइनस 11, सो इट विल बी माइनस 13। यहां पर ही हो जाएगा दिक्कत। अगर तुम उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिए, मतलब x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर कर दिए प्लस 2x 1 बाई एक्स लेकर, तो बाहर बचा माइनस 2 वाला। तो माइनस 2 जब 11 से ऐड होगा, माइनस 11 से, तो माइनस 13 बन जाएगा, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मुझे चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट, तो मुझे सेकेंड वाला भी एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। देन व्हाट वी हैव टू डू, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा यहां पर। तो इसी वजह से मैं ये वाला को माइनस करूंगा। एक मिनट इसको इरेज कर दो। हाँ, तो इस वाला को माइनस करूंगा और इस वाला को प्लस करूंगा। इसमें फायदा क्या हुआ अभी देख सकते हो। फर्स्ट वाले तो कोई तो दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाला तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। एंड सेकेंड वाला देखो, अभी सेकेंड वाला में ये x एंड x कैंसिल हो जा रहा है, फाइनली प्लस 2 माइनस 11 बच रहा है, सो इट विल बी माइनस 9। अब जाकर हुआ सेकेंड वाला अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर जैसा था,
-3 का स्क्वायर। तो अब जाकर बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही घूम फिर कर बात एक ही जगह अटक जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम्हें खाली दिमाग में यही रखना है, यू नीड टू फाइंड आउट दिस फॉर्मेट फर्स्ट। ये वाला एक बार कर दोगे तो बस जिंदगी मक्खन। ओके, सो फाइनली व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर। तो देखो x माइनस वन बाई एक्स का +3 आएगा, मतलब a प्लस बी फॉर्मेट है ये। और x माइनस वन बाई एक्स का -3 भी आ जाएगा। सो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मेट, दैट्स इट। ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया। चलो एक बार डिस्कस कर लेते आज क्या क्या हुआ। Alright, so in this part we just observe that a square minus b square is the hero. वो छोड़कर तो कोई सम आज नहीं देखी। तो यही मुझे काम करना है, वो वाला जो फॉर्मेट जो भी दिया जाए उसको कॉमन लेकर या फिर थोड़ा सजा कर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में लाना है। इफ यू ब्रिंग दैट इज इन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट, तो बस वहां तक तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद जस्ट आइडेंटिटी यूज करो, हीरो को काम करने दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, एंड तुम्हारा वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। So I hope you understand. Still, if you have any doubt, just write it in the comment section and don't forget to practice this exercise. Alright, so that's it for today. We will meet in the next video. Till then, bye bye.